اور سونو سسٹر ایک بات اور بھی کرنی ہے، وہ ایک یہ ہے کہ آپ میری یہ آواز جو ہے نا حکومت تک پہنچائیں کہ جو یہ لوگوں کے گھر برباد ہو رہے ہیں نا اس کنجر خانے سے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ یہ میری آواز پہنچائیں، اس پہ بیان لگائیں۔ یہ تو میڈیا ہے، پتہ کیا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے۔ یہاں پر اتنا کنجر خانہ ہے، ناچ گانا ہے، اور یہ میری بیوی کو دیکھو نا، یہ کیا کر رہی ہے، یہ ڈالروں کی خاطر اور یہ مشہور ہونے کی خاطر، پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ اس کی خاطر مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی ہے احمد کے ساتھ، اور احمد بغیرت کو بھی شرم نہیں آتی۔ بھئی اللہ کے بندے، میں نے کوئی طلاق دی ہوئی اپنی بیوی کو، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں شادی کر کے لے کے جا رہا ہوں۔ بغیرت آدمی ہے، بالکل بغیرت آدمی ہے، اس کے پاس دین اسلام کی کوئی بات نہیں ہے، اسے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اپنی بیوی اس کو چاہیے میرے پاس بھیج دیتا، پھر اگر اس کے نزدیک کوئی بات نہیں ہے تو شرم کی بات ہونی چاہیے۔ میری بہن ہے، آپ اسے سمجھاؤ، اور میری یہ آواز آپ گورنمنٹ تک پہنچاؤ کہ ان چیزوں کو بین کرو، یہ کنجر خانہ بند کرو۔ یہ کیا ہے طریقہ؟ انسٹاگرام پہ سونو سسٹر میں آپ سے رابطہ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ بات یہ ہے، یہ جو شازیہ ہے میری بیوی ہے، تو اس کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہو گئے ہیں نا، تو اس نے مجھے برباد کر کے رکھا ہوا ہے۔ گھر میں ٹائم تو دیتی نہیں ہے، یہ 2 2 دن 3 3 دن جو ہے نا احمد کے ساتھ گزارتی ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا، وہ تو بغیرت کا بچہ، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی دلال نہیں ہوتے، یہ جو ویڈیو والے دلال ہوتے ہیں نا، یا بازاروں میں جو دلال ہوتے ہیں، یہ ویسا بندہ لگتا ہے مجھے، شکل سے دلال لگتا ہے۔ تو میں اس کا کیا کروں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میری بہن مجھے کوئی مشورہ دو کہ میں اس کا کوئی سیدھا کر سکوں اسے، اور آپ کی مہربانی ہوگی کہ میری بیگم کو کچھ سمجھاؤ کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ گھر آ جائے، اپنے گھر کو آ کے گھر کرے۔ 3 بچے ہیں، میرا تو خاندان مجھے کھاتا ہے، میں کیا کروں اس کا؟ میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا، میں پریشان ہو گیا ہوں۔ اللہ کا واسطہ ہے، میں ہاتھ باندھ کر آپ سے بات کر رہا ہوں، مجھے آپ اچھی لگی ہیں، آپ کی سمجھانے کا طریقہ کار بھی اچھا ہے۔ اب میں کیا کروں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے اس لیے آپ سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ میرا آپ سے رابطہ ہو گیا ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ اس عورت کو کچھ سمجھائیں جو میرے گھر کو گھر کرے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں کس چیز کا شوق چڑھا ہوا ہے، ناچنے کا، گانے کا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، عورت کا کام ہوتا ہے گھر کو گھرستی کرنا، یہ تو بد طریقہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کی مہربانی۔ میاں نے اپنی بیوی کو آپی کیوں بولا؟ جی بہن بھائیوں، جو ٹک ٹاکر ناچنے والی، میں اس کو عورت نہیں کہوں گی، میں اس کو ماں نہیں کہوں گی، میں اس کو بیوی نہیں کہوں گی، میں اس کو ڈیجیٹل طوائف کہوں گی۔ آخر چھمیا نے اپنی دوسری بیوی کو آپی کیوں بولا؟ آخر ایک بڑے بزرگ نے چھوٹے بزرگ سے لڑائی کیوں کی؟ اس بزرگ نے تو آنے والی بہو کے سر پہ پیار دیا تھا۔ جو تصویر میں نے یہاں لگائی، کہتے ہیں نا جھوٹ کا سر پاؤں نہیں ہوتا، یہ وہ ڈیجیٹل دلال ہیں جو ڈالر کے لیے نت نئے کرتب کرتے ہیں، نت نئی چیزیں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، پریگنسیاں، گالی گلوچ، فحاشی۔ اب تو انتہا ہو گئی کہ ایک کرائے پہ عورت لے آیا، ایک عورت کے 2 خامد۔ جی بہن بھائیوں، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ یہ وائس سنیں اور پھر آپ نے بتانا ہے کہ آخر ایسی ڈیجیٹل طوائفوں کا اور ایسے ڈیجیٹل دلالوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے، ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ کرتے ہیں ویڈیوز کھانے کو تھوڑی تھوڑی لگی بیٹھی ہے، ایک فول لگی تھی میرا تو کے کھا دیتے دیکھ کچھ شاگا نہیں پیتا۔ دیکھو تو جیڑے ویلے لگتی ہے نا فل لگتی ہے۔ ہاں تو آپ کو پتا ہے نا میں کتنی بکری کو کولیاں کولی کا مطلب پتا ہے؟ بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ نہیں، کولی کولی، ہاں صحیح ہے، سمجھ لگ گئی ہے۔
अच्छा आप भी मुझे बता दो, आप बता दो। अच्छा आप भी मुझे बता दो, आप बता दो। अच्छा आप भी मुझे बता दो, आप बता दो। इससे तो मैं रोज पूछता हूँ ना, ठीक है। नहीं दुनिया के बड़े बड़े दूल्हे वेखे ना, गैरतमंद दूल्हा चेक कर लो। तो अभी मैं आप सबको दुल्हन का फेस दिखाने वाला हूँ, अपनी दूसरी बेगम साहबा का। और अभी दोनों जो है ना वो एक साथ बैठी हुई हैं, मैं भी अभी उनके साथ बैठता हूँ और खुद अपने हाथों से जो है ना वो फेस रिवील करता हूँ। और आप सब देख के आपने एक चीज जरूर बतानी है कि दोनों में से कौन ज्यादा प्यारी है। ये ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਕਿਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਦੋਵਾਂ ਚ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਥੋਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲਕ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬੈਡਰੂਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਹੀ ਗਿਆ। ਦੀ ਸਿਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈ ਆਈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਬਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਨੀ ਕੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਬ ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ। ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ, ਓਏ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੰਗ ਡੋਂਗ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਗਾਲਾਂ, ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਦਿਲ ਆ ਸਕਦਾ ਦੁਲਹਨ ਬਣੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਠਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖਵਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਣਾ, ਕੁਛ तो ਹਿੱਸਾ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ। ਚੱਕੋ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी स्टार्ट में जो वॉइस चली वो शाजिया का शोहर है। शाजिया के शोहर ने हर रिएक्शन वाले से और सारी YouTube फैमिली यानी जितनी भी फैमिली ऐसे डिजिटल दलालों की फैमिली व्लॉगिंग देखती है उनसे रिक्वेस्ट की है, खुदाया मेरा घर बचाए, एक दूसरी सीमा हैदर ना बनने दे। वो तो अपने बच्चे लेके इंडिया फरार हो गई और उसने अपने मुल्क पे दब्बा लगाया, पर ये जो डिजिटल तवाइफ है ये अपने बच्चे घर रोते धोते छोड़ के अपने फेम और अपने चैनल को ग्रो कराने के चक्कर में एक किराए की औरत बन के वहां चली गई है। आपने ये वॉइस सुनी, ऐसी मेरे पास कितनी वॉइस भाई साहब ने इंस्टाग्राम पे भेजी जो मैं गाया बगाया चलाती रहूंगी। फिर उसके बाद मैंने आपको एक टिकटॉक का क्लिप भी दिखाया कि अहमद उर्फ छमिया की रोस्टिंग अब टिकटॉकर के हाथों होना शुरू हो गई है। अब आयशा और फातिमा के बाद अहमद दीन बलोच और सबा की बारी है। अब मैं यहाँ बात करती हूँ, मुझे मेरी किसी सब्सक्राइबर ने एक इंस्टाग्राम पे लिंक सेंड किया। जब मैंने वो लिंक क्लिक किया तो वो हमारे भाई साहब मुखलिस का चैनल था, यानी उनकी मिसेस का चैनल था। आपको पता है जैसे ये टब्बर, ये फैमिली झूठ बोलने में माहिर है, बच्चे पैदा करने में माहिर है, भीख मांगने में माहिर है, फहाशी फैलाने में माहिर है, औरतों की कमाई खाने में माहिर है, ऐसे ही ये नए नए चैनल बनाने में भी माहिर है। ठोस वकील की भीख भी आपको मांगते हुए नजर आए। मौसम की बहन की शादी के लिए ओवरसीज बहन भाइयों को फिर रोना धोना दिखाया जा रहा है। ये रिएक्शन भी मैं कवर करूंगी। कल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर 50 से 60 चैनल हैं इस फैमिली के, ये भी क्यों मांगने पे मजबूर है। पहले बात करते हैं बुजुर्गों की। मुखलिस भैया साहब ने कहा कि बुजुर्ग मैदान में आ गए। अब्बा जी को सब पता चल गया और अब्बा जी ने मुखलिस बुजुर्ग को ये चीज बताई। क्योंकि मैं इनके चैनल नहीं वॉच करती, मैं सिर्फ इनका जो डिजिटल दलाल उर्फ छमिया
अहमदुद्दीन बलोच है, उसी के चैनल को सब्सक्राइब किया, उसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं थंबनेल देख के समझ जाती हूँ अब ये कंजर क्या फहाशी फैलाने वाला है। जब मैंने वो वीडियो क्लिक की, मैंने पूरी वीडियो देखी, मुझे हंसी आ गई। और वो तस्वीर मैंने लगाई है जो बुजुर्ग अपनी किराए की बहू को सर पे प्यार दे रहे हैं। क्या वो बुजुर्ग को जब कोई ओवरसीज बहन भाई भीख भेजता है, जब वो ओवरसीज बहन भाई रमजान के महीने में ज़कात भेजता है, जब कोई ओवरसीज बहन भाई ईद भेजता है, उस बुजुर्ग को वो पैसे हजम करने की सारी होश होती है। जब घर में बेटे किराए की औरतें लेके आते हैं, किसी के बच्चे पीछे रो रहे होते हैं और वो बुजुर्ग इतने बेखबर हो जाते हैं कि उनको समझ बूझ नहीं आती। मुखलिस भाई साहब की वीडियो देख के हंस हंस के मेरे पेट में दर्द लग गई कि आखिर अब वो वैसे रिएक्शन वालों को नहीं देखते, अभी वो रिएक्शन वालों को नहीं देखते, पर कुत्तों की तरह रिएक्शन वालों के ऊपर भौंकने के लिए आ जाते हैं। जब हम इनके व्लॉग में से ही चीजें उठा के आपके सामने रखते हैं, जब तबसरा करते हैं। अब मुखलिस भाई साहब को और समीना भाभी साहबा को पता चला है कि वो टिकटॉकर है, वो कोई यंग लड़की नहीं, वो कोई एज की जनानी है, क्योंकि मुखलिस भाई साहब यानी छोटे बुजुर्ग मुखलिस ने बड़े बुजुर्ग को बताया कि मैं तो सिर पे पट्टी भी बांधी थी, और जब मैं भाभी को लेने गया ना कोई मेरे सर पे माथे पे जख्म था, ना कोई निशान था, क्योंकि बालों में चोट नहीं लगी थी, माथे पे चोट लगी थी। ऐसे ही मुखलिस का अहमद उर्फ छमिया ने बाजू तोड़ा, ऐसे ही मुखलिस की टांग तोड़ी, और ऐसे ही मुखलिस कब्रिस्तान में से ज़ेदिन तो आज़म खो बैठे हुए हमें मिला। ऐसे ही मुखलिस का बेटा नंबरदार अगवा हुआ, फिर हमने सबूत के साथ नंबरदार को सेल में घूमते फिरते हुए आपको दिखाया। और अब भी सारी इस टिकटॉकर डिजिटल तवाइफ शाजिया बीबी की हकीकत प्रूफ सबूत के साथ आपके सामने रख दी। अब शाजिया का शोहर भी मैदान में आ गया है। शाजिया का शोहर ये कंजर खाने के लिए इhtजाज कर रहा है। शाजिया के शोहर ने अपील की है कि मेरी ये आवाज़ हुकूमत पंजाब तक पहुंचे, क्योंकि घरों के घर तबाह हो रहे हैं। औरतें अब किराए पे खुसरों की बीवियां बनने पे मजबूर हो गई हैं। खुदाया घरों को बचाया जाए और ऐसे दलालों का बाइकाट किया जाए। मैंने आपसे जो जो कहा, मैंने वो प्रूफ आपके सामने रखे, मैंने हर चीज सबूत के साथ सामने आपके रखी। मैंने वो वॉइस भी लगाई जिसमें ये छमिया अपनी दूसरी बीवी को आपी कह के बुला रही है। क्या आपियों के साथ निकाह होते हैं? क्या बहनों के साथ निकाह होते हैं? क्या बहनों को किराए पे भेजा जाता है? शाजिया बीबी के शोहर ने कहा अगर इसने मेरी बीवी शाजिया को अपने घर रख के एक्टिंग करवानी है तो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे। कितनी बड़ी जूती है कि एक गैर मर्द, एक गैर महरम सबा को ललकार रहा है, पर छमिया के कानों पे जूं तक नहीं रिंगती। बुजुर्गों को होश उस वक्त आती है जब बुजुर्गों को ये पब्लिक से जूते और गाली गलोच निकलवा देते हैं। अब ये रहता इतना फैला चुके हैं, ये वही मुखलिस ड्रामेबाज रंगबाज आदमी ड्रामा करके पाया तकमील तक पहुंचा के अब जब देखा कि लोगों को पता चल गया है वो टिकटॉकर है, अब भाई साहब फरमाते हैं कि अब्बा जी ने फैसला कर दिया है कि ये रंडी इस घर में नहीं रहेगी। ये टिकटॉकर और हाथ वाली डॉक्टर, ऐसी डॉक्टरें हाथ वाली होती हैं, अताई डॉक्टरें होती हैं, ये इस घर में नहीं रहेगी, इसको कहीं भी रखो। बहन भाइयों, अब ये चैप्टर क्लोज करने का तरीका है जब इन्होंने रहता फैला देते हैं, जब ये बेशर्मी फहाशी को प्रमोट कर लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं, नए सब्सक्राइबर ले लेते हैं, फिर अब्बा जी और अम्मा जी को यानी बुजुर्गों को मैदान में उतारते हैं। यहाँ मैं ठुस वकील इल्ताफ से पूछती हूँ, अब आपके बुजुर्गों को ये झूठे कंटेंट में इस कंजर खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आप अपने बहनोइयों और साले के बारे में क्या केस कहोगे और क्या केस लड़ोगे? और जो शाजिया बीबी का शोहर मैदान में आया है उसको क्या जवाब दोगे? अब बुजुर्गों के मोंडे पे रख के बंदूक चलाई जा रही है, क्योंकि अब उस डिजिटल तवाइफ का ये ज्यादा पैसा नहीं भर सकते। डिजिटल तवाइफ के घर में भी हालात खराब हो गए हैं, उसके बच्चे रोते रहते हैं, उसका शोहर मंजरे आम पे आ गया है। अब शहर का कह के कि हमने शहर भेज दी, अब बुजुर्ग लड़ पे, हालांकि बुजुर्ग नहीं लड़ते, बुजुर्गों की मोटे च 1000-2000 दो ते कंटेंट महीना खींचा जा सकता है, पर नहीं जी, हाथी के दांत खा
सिखाने की ओर और दिखाने की ओर। अब ये चैप्टर क्लोज करने के लिए अहमदीन बलोच उर्फ छमिया के अब्बा जान बुजुर्ग बड़े छोटे मुखलिस बुजुर्ग को ऐलान कर गए हैं, आग बगोला हो गए हैं। अब ये चैप्टर ये रहता क्लोज होने वाला है। अब क्या फायदा क्लोज करने का, क्योंकि वो तो छमिया की आपी है। अब उसका शोहर सामने आ गया है। सोनू की दुनिया ने सारे प्रूफ सामने रख दिए। सोनू की दुनिया ने लोगों को बता दिया, लोगों ने यकीन कर लिया था कि सबा के साथ सबा मीसनी, सबा मकार, सबा इश्का पिटी, इसको जो भी अल्फाज दे कम है, वो इस झूठ के ड्रामे में शामिल थी। लोगों ने कहा जुल्म हो गया, छमिया ने निकाह कर लिया। जैसे ही छमिया ने रिवील किया उसका फेस, हालांकि आपको पता है अगर वो चाहता तो ये कंटेंट ज्यादा खींच सकता था। अगर 2 हफ्ते वो शादी कर रहा था, दूसरी बीवी ले आऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इतनी आसानी से फेस रिवील रुखसती वाले दिन ही कर दिया। इसलिए बहन भाइयों कि किराए पे ये 2 नंबर औरत को लेके आया था, ये नाचने वाली तवाइफ को किराए पे लेके आया था, पर उसको नहीं पता था कि सोनू की दुनिया, मैं नाम इसका नहीं भी बताऊंगा तो वो सारा इसका कट्ठा चिट्ठा खोल लाएगी और विद डीएनए आपके सामने प्रूफ लगाएगी। जब मैंने प्रूफ लगा दिए, मैंने हकीकत पब्लिक को बता दी, अब ये कुत्ते की हड्डी बन के शाजिया छमिया के गले में अटक गई। अब छमिया ने मजीद उसको रेंट पे बुक किया और उसको कुछ दिनों की पेमेंट की। और ये जो आप शूटिंग देख रहे हैं, हांडी पकाते हुए, चादरें चेंज करते हुए, ये सब एक शूटिंग है। अब ज्यादा पैसा नहीं भर सकते, इसलिए अब बड़े बुजुर्ग ने छोटे मुखलिस बुजुर्ग को अल्टीमेटम दे दिया है कि इसको शहर में शिफ्ट किया जाए। बहन भाइयों, अब 2 बीवियों का ड्रामा शहर और गांव का चलेगा। अब ये कहानी आएगी क्योंकि अब्बा जान ने पसंद नहीं किया, क्योंकि अब्बा जान की मुठ किसी ने गर्म नहीं की, अब्बा जान को 1000-2000 भी किसी ने नहीं दी, मुखलिस औरों के चैनल ग्रो नहीं किए। इसलिए अब ये चैप्टर क्लोज होगा क्योंकि मुखलिस भाई साहब को पता चल गया है कि वो एक टिकटॉकर है। पहले इनको ये पता था ये लेडी डॉक्टर है, तो ये खानदान इसी में खुश था कि चलो साड़ियां बुढ़ियां आए दिन प्रेगनेंट होंदियां ने, असी प्रेगनेंसी खेलना है, चलो दाई डॉक्टर घर दी केस हो जाएंगे। नाचने वाली निकली तो नाचने वाली तो इन बुजुर्गों के घर पहले ही बहुत है। आपने देखा होगा जब नंबरदार की ढोलकी रखी, सबने झूमर डाला, अल्ताफ के उधर शादी पे के सारियों ने झूमर खेला। इनके वो प्राइवेट डांस भी मेरे पास पड़े हुए हैं जो यूट्यूब पे नहीं, कि इनके खानदान की माइयां भी झूमर खेलती हैं, कैसे उनके दुपट्टे उतरे होते हैं, कैसे वो नाचती हैं। अगर आप कहेंगे मैं वो क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपनी सारा एफर्ट अपने मतलब इनका सारा झूठ सच प्रूफों के साथ आपके सामने रख दिया। शाजिया के शोहर की आपने वॉइस सुन ली, हर चीज मैंने आपके सामने रख ली। अब आपने फैसला करना है और आपने अपने मुसलमान होने का हक अदा करना है कि इन डिजिटल दलालों का, डिजिटल तवाइफों का कैसे बाइकाट करना है। अगर आज का रिएक्शन आपको पसंद आया है, अगर आपको लगा है कि वाकई ये फहाशी फैला रहे हैं, ये गंदगी फैला रहे हैं, औरतें घरों की खराब हो रही हैं और ये किराए पे एक औरत के 2 शोहर और उसका शोहर सबा को मांगता है, उसका शोहर उसको मांगता है, क्या ये फहाशी नहीं तो और क्या है। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो, क्योंकि इंस्टा आईडी का मैं इसलिए जोर देती हूँ, ये जो वॉइस शाजिया के शोहर की आई है ये भी मुझे इंस्टा पे आई है। जो बहन भाई कोई भी प्रूफ सबूत देना चाहे किसी और यूट्यूबर के लिए भी इंस्टा पे आए, मुझसे रब्ता करें, मैं एक्टिव होती हूँ, आपको इंसाफ मिलेगा। और ऐसे डिजिटल दलाल और तवाइफों को हम बेनकाब करते रहेंगे, जिसमें अब कदम बढ़ा दिए हैं अफान डॉक्टर ने, मलकू भाई ने, सलमान भाई ने और अदनान राजपूत ने। अब सिर्फ बहनें ही इनकी वीडियो का पोस्टमार्टम नहीं कर रही, बहनें ही इनके प्रूफ सामने नहीं ला रही, इनके झूठ सामने नहीं ला रही। अब भाइयों ने भी इनको टारगेट कर लिया है। स्टार्ट में आपने क्लिप देख लिया होगा, अब इनका भी हाल आयशा और फातिमा जैसे होने वाला है। और
क्या नाम है उसका, शाजिया के शोहर की और भी मेरे पास वॉइस हैं, वो मर्द होके रोता हुआ नजर आया, वो भी वॉइस आपको गाया बगाया हर रिएक्शन के साथ सुनाऊंगी। और आपकी क्या राय है, क्या ऐसे ही आप इन कंजरों को सपोर्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ऐसे ही हंसते बसते घर उजड़ेंगे? क्या घरेलू औरतें फेम और YouTube के चैनल के लिए अपने बच्चों को रोता छोड़ेंगी और एक टाइम पे 2-2 शोहर रखेंगी, या छमिया शाजिया के शोहर के पास सबा को भेजेगा? क्या ये वट्टा सट्टा होने जा रहा है? आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।